engagement initiatives for agentic AI. So there is a frequent failures, more than like 10 applications we are supporting from infrastructure side. Generally, pipeline is to fails due to runner issue, or there is like report problem in the scanning tools. So we need to manually go and validate and review those all PRs. So what we did is that we have created and trying to create one PR, agentic AI PR. We trying to create one agent. So in place of that, the reviewer, we can just give these tasks to review to the agent. Agent will take care of these all reports scanning, and if everything looks good or not, and it's reviewed and get merged to the PR or not, PR to the main or not, that in place of any reviewer, we will try to pinch in and put in that agent. And similarly, there is a separate agent we are creating for the pipeline failure. If pipeline fails, so in suppose runner is not there online, runner is disk space is full, whatever the issue is, I'm not sure there's ample amount of many issues used to come in the pipeline. So whatever the issues will be there, so we are creating one AI agent that will scan the pipeline features and everything and generates the report why this pipeline is failing, and the agent will take care of just making the changes inside the pipeline code and raise the PR, merge it, and then improve the like that. Like once that agent will run, so that will take care of both. It will just give the error, what is the reason of this failure of the pipeline, and again make the changes in the pipeline and improve and make that error resolved in the pipeline. So all these things will be done by agent. And again, we have creating a cost optimization agent. So that agent will take care of whatever the extra spaces, disk, right sizing, and whatever the tools we need to do for the cost estimation. That will be, just that agent will take care of cost, and whatever the extra code we are pinching in for dev and pre-prod, it will scan, generate report, and do the needful to just make the right sizing, or whatever the suggestion is given by the LLMs. According to that, it will change and implement in the code of the Terraform and raise a PR, and automatic pipeline will run, approve, and run, and again that will be deployed with the new size. भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको 3-4 AI एजेंट के बारे में पढ़ लेना है, जिसमें LLM, RAG, वेक्टर डीबी, एजेंट, MCP। भाई जाके एजेंटिक एआई थोड़ा कल हम लोग क्लास में लास्ट में पूरा डिजाइन बना के रटवाएंगे आपको एआई के बारे में, कहाँ कहाँ एजेंट लगाना है। कि हम लोग POC कर रहे हैं, we are not in production yet, but at least we are in sandbox environment. In near future, in next process improvement planning, next quarter we are trying to ingest few agents. भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक बार थम्स अप करके बताओ सब लोग। भाई एक बार क्लियर करके बताओ, अगर ऐसे बोल पाओगे वो हिल जाएगा भाई, हिल जाएगा। मैं तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, स्पीड में आपको धीरे धीरे ब्रेक लेकर, पाउज लेकर, मैं तो स्पीड में बोल रहा हूँ, क्लास का टाइम हो गया। आपको भाई सेम चीज अलबला के नहीं बोलना है, हम तो जल्दी जल्दी में अलबला के बोल रहे हैं। भाई आपको अलबलाना नहीं है, धीरे धीरे समझा समझा के बोलना है। आपके पास टाइम वहां पे खाना है। बताओ अगर ऐसा बोल पाओगे तो भाई कोई पीछे कर पाएगा? अच्छा इंजीनियर IT वाले आप ही बोलो, क्या कोई पीछे कर पाएगा आपको? जो ये बंदे अगर सीख लेंगे तो जो IT में ऑलरेडी हो भाई, उसको खुद ही डर लग रहा होगा, भाई सर क्या कर रहे हो आप। ये सुन लेगा IT वाला, हिल जाएगा भाई, बोलेगा बाप रे बाप, इतना तो साला हम ही नहीं जानते। भाई आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का क्लास भाई आप लोग पूरा फील करो, और कम से कम ये जो पूरा सेटअप है, कुछ जरूरत नहीं है रिपोजिटरी का। जाओ, आपके पास बस टेराफॉर्म का कोड है, गिटहब पे अकाउंट है, जो हम लोग किए हैं वही चीज बिना वीडियो देख के रिपीट करो, चैट जीपीटी से बातें करो, एंड ट्राई टू डेवलप दिस पाइपलाइन विद हेल्प ऑफ चैटबॉट। आपको समझ में आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, YML में क्या लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, हमको उस पर भाई बात ही नहीं करना है। वो पढ़ लेंगे कल हम लोग शुरू से फिर से, बट वी जस्ट वांट कि जितना हम लोग पढ़े हैं उतने को आप लोग अंदाजे में चैट जीपीटी से बात करके कर सको। भाई कर पाओगे? थम्स अप करके बताओ, कर पाओगे? अब देखो, जो काम आप चैट जीपीटी से बात करके आप कब कर रहे हो, आप वहां जा जा के काम कर रहे हो, वो आप नहीं करके आपके जगह पे आपका असिस्टेंट दे दें, और उस असिस्टेंट का नाम AI एजेंट दे दें, आपके जगह पे वो एजेंट करे, तो क्या रहे भाई बताओ। API कॉल करके, LLM, MCP सर्वर कॉल करके, अलग अलग टूल को कॉल कर ले, जो हम लोग अभी काम कर रहे थे। ये काम हम लोग के लिए हेक्टिक है कि नहीं हेक्टिक है? बताओ। बार बार कॉपी करना, पेस्ट करना, ये करना, वो करना, लाना जाना, लेना होना। अगर इस काम के लिए PA हायर कर ले और उससे करवाएं और कर दे वो,
तो भाई अभी तो हम लोग खुद ही पिए हैं, जब एक बार एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये सारे काम जो हम लोग इतना टू एंड फ्रो में कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, ये एआई एजेंट करेगा। भाई एजेंट क्या करेगा, एजेंट एक चैटबॉट से कनेक्टेड होगा, एजेंट एक आपका एलएलएम से कनेक्टेड होगा, लामा से, जीपीटी से, है ना, ट्रॉफी से, क्लाउडे से, जिससे भी वो देखा जाएगा, एज्योर के बेडरॉक से, एडब्ल्यूएस से, चाहे एज्योर से, केएलएम से, वो देख लेंगे हम लोग कहाँ से करना है, और उसको बीच में एजेंट रख के हम लोग एमसीपी सर्वर कॉल करके, डिफरेंट टूल्स को कॉल करके, बेस्ड ऑन कि कुछ टूल पे वो जाना है, एमसीपी ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू जाते हुए, एमसीपी जाते हुए कॉल करके ये सारा काम अगर वो करे, तो भाई बताओ आग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। मतलब आप एंड टू एंड जान रहे हो। लोग बोल रहे एआई एजेंटिक एआई एजेंटिक एआई, बिना यूज केस जाने हुए एजेंटिक एआई को यूज का है क्या? बताओ एक बार थम्स अप करके। एजेंटिक एआई लगाओगे कहाँ? या तो आप डैशबोर्ड पे लगाओगे, प्रोडक्ट पे लगाओगे, वेबसाइट पे लगाओगे, नहीं तो उस वेबसाइट को बनाने चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोड है वहां लगाओगे। तो मार्केट में जो एआई चल रहा है वो ट्रैप है, वो झूठ का भाई। जाके तुमको प्रोबेबिलिटी, एम्बेडिंग्स, टोकनाइजेशन, जिसका कोई वैल्यू मार्केट में नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बताओ कभी भी हम लोग का औकात होगा कि ट्रॉफी इतना पैसा लगा के उससे बढ़िया एलएलएम बना लें? भाई सब लोग थम्स अप करके बताओ, कभी हम लोग का औकात होगा कि इन ट्रॉफी को पीछे कर दे, कभी जीपीटी को पीछे कर दे? भाई तो कभी भी थोड़ा बहुत फाइन ट्यून वगैरह करने को आ सकता है, लेकिन आज के डेट में जनरेटिव एआई का कोई वैल्यू नहीं बचेगा आने वाला टाइम में, क्योंकि बड़ा मछली खा गया है। उस जनरेटिव एआई दिमाग को यूज करके, अमन सर के दिमाग को यूज करके हम लोग को पूरा एआई, एमएल, डेवसेकऑप्स, एमएलऑप्स जो भी करना है, अमन सर को बोले हाँ ना सब आता है, तो उनके दिमाग से यूज करके सीख रहे हैं। तो अमन सर एलएलएम हो गए, तो एलएलएम, इनका दिमाग एलएलएम हो गया, मॉडल्स हो गया, जो ऑलरेडी भाई अमन सर ने डेवलप करके बनाया। बताओ हम लोग अगर मॉडल शुरू से बनाए, इतना डेटा, ये वो दुनिया जहां, एम्बेडिंग, टोकनाइजेशन, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स, उतना करने का जरूरत नहीं है। डेटा साइंटिस्ट वाले को करने दो, वो भी भाई कुछ नहीं, 4, 5, 6 कंपनी में ही, 10 कंपनी में, 20, 50, 100 कंपनी में रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि भाई ये सारा काम बड़ा बड़ा जाइंट इसको ले लिया है। अभी जो है मॉडल्स इतने ग्रूम्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है इतने, और एकदम अच्छा हो जाएगा 3-4 साल में, और स्पीड में एआई में काम बढ़ेगा। अभी फ्रेशर लेवल, क्योंकि अभी डेवलप हुआ है, हाइप बना के फ्रेशर लेवल के मॉडल्स हैं, एलएलएम्स हैं, क्लाउडे मान लो फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन प्रोडक्शन तक जाने लायक नहीं हुआ है। लेकिन कमिंग 4, 5, 7 ईयर्स में प्रोडक्शन तक जाने लायक होगा। जब तक एजेंटिक एआई डेव इन्वायरमेंट में, प्री प्रोड में मैक्सिमम चलेगा। प्रोडक्शन में रीड कर सकता है एआई, लेकिन राइट करने का परमिशन अभी एजेंटिक एआई या एलएलएम का नहीं हुआ है कि वो राइट कर सके, या कि इतना विश्वास वो मार्केट में जनरेट नहीं कर पाया। जब क्लाउड 2010 में आया था, तो उस टाइम पे लोग क्लाउड पे विश्वास नहीं करते थे कि क्या होगा। लोग बोलता था अपना डेटा कैसे भेजेगा, क्लाउड नहीं चलेगा। लेकिन भाई एक बात याद रखो, इतने बड़े बड़े जाइंट जब पैसा लगाते हैं, उनके पास सब विजन होता है, वो लॉस में नहीं जाते हैं। खराब हो या अच्छा, एआई आएगा, एआई आके भाई उन लोगों का पुंगी बजाएगा जो अपने आप को स्किल नहीं करोगे। जो स्किल करोगे वो पूरा आईटी को बेस से समझ के पूरा जानोगे, वो नचा के बहुत पैसा बनाओगे। और सीखना इतना आसान नहीं होगा, देख लिया ना भाई, इतना आसान नहीं है। ये करने के लिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, तब आज ये लेवल आया है। और इतना मेहनत कौन करता है भाई? भाई इतना मेहनत पागलों की तरह कितने लोग कर रहे हैं पूरे इंडिया में? बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन भाई आपको समझ में आ रहा है कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से उठकर, कुछ नहीं जानते थे, आज के डेट में बड़े बड़े इंजीनियर को टक्कर देके उससे आगे निकल रहे हो। इस बात का गर्व हो रहा है कि नहीं गर्व हो रहा है? जोरदार ताली बजाओ अपने लिए कि आप धीरे धीरे ट्रू इंजीनियर बन रहे हो। और आने वाले टाइम में भाई हम लोग तो प्रोडक्ट वगैरह सब बनाना सिखा देंगे, जावा, डॉटनेट, पाइथन, गो, रस्ट एआई का, एआई इंटीग्रेटेड सब हम लोग रस्ट पे बैकएंड करते हैं। हम लोग आज की डेट में हमारी पूरी डिवॉप्स इनसाइडर टीम रस्ट डेवलपमेंट बैकएंड पे काम करती है। भाई रस्ट वन ऑफ द मोस्ट, आईटी का स्पीड अप करने के लिए सबसे भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैकएंड का। लेकिन भाई सब लोग को ये समझ रहे, ठीक है ना भाई, कंट्रीब्यूटर वगैरह करते रहना भाई, सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार थम्स अप करके बताओ भाई। सबको नीट एंड क्लीन, सब लोग जाके ये करके आओगे। कल आओ, कल शुरू से क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें गिटहब एक्शन पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन क्यों होता है, रनर क्या होता है, सर्विस कनेक्शन क्या होता है, सर्विस प्रिंसिपल क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, शुरू से सब पढ़ेंगे।
लेकिन आज हम लोगों का फोन हैंग हो जाना चाहिए, अपने से बैठ के घर पे अपने से बातें करते करते इतना पाइपलाइन बंद कराना चाहिए कि हम लोग का फोन हैंग हो जाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है आप इस मेहनत को जाया नहीं जाने दोगे, इस हार्डवर्क को जाया नहीं जाने दोगे, और अपने साथ इंसाफ करके दिन रात झोंक के अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने लिए, अपने जीवन को उठाने के लिए सिर्फ कोडिंग नहीं, कोडिंग के साथ साथ नौकरी ढूंढना, बाहर में नौकरी देना, पूरा फ्लो को ढंग से पढ़ना, हर दिन नोट्स बनाना, जो राहुल भाई ने बोला अपने छोटे भाई ने, अमल करके कमिंग 1 से 1.5 से 2 महीना में मैक्सिमम लोग जॉब में जाओगे। भाई सब लोग गारंटी दो कि जाओगे कि नहीं जाओगे। थोड़ा थोड़ा एजेंटिक एआई के बारे में हम लोग हर दिन बात करेंगे, आने वाले टाइम में एक लेवल तक इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देंगे, ताकि आप लोग जाओ मार्केट को जॉब लो। और भाई एक बार जॉब में आ जाओ, पढ़ते रहो, जॉब के बाद आराम नहीं करना है भाई, पढ़ते रहना है लगातार 2 साल 3 साल, जब तक प्रो ना बन जाओ ब्रो। एक बार प्रो बनने पे भाई फिर जिंदगी में मजे ही मजे हैं, मजा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें पूरा विश्वास है आज आप एंजॉय किए होंगे सेशन, एक अलग अनुभूति हुआ होगा, एक अलग फीलिंग आया होगा कि कैसे आईटी में काम होता है, क्या होता है, और कैसे आप एक अगर मैच्योर दिमाग हो, अच्छा नेटवर्किंग हो, आप कम्युनिटी में अच्छा पकड़ बनाए हो, अच्छे लोगों से मिले हो, कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हो, कितने भी विषम से विषम परिस्थिति में आप फिर से उठकर खड़ा हो सकते हो। आपने अगर इंसान कमाया है, इंसान अगर आपने कमाया है तो इंसान आपको उठा देता है। अगर आपने जीवन में सिर्फ हैवानियत कमाया है तो आप कितना भी कमा के शून्य कमाते हो। इंसान कमाओ, दोस्त कमाओ, यार कमाओ, सुकून कमाओ, दुआ कमाओ, यही काम आना है, यही जाना है, बाकी कमीनापंती यही रह जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें पूरा विश्वास है आप मन से दिल से एक अच्छे इंसान बनोगे, हेल्पफुल बनोगे, नीडी के लिए सपोर्ट बनोगे, और हर दिन ग्रेटफुल होकर अपने जीवन, अपने परिवार के साथ खुश रह के ईश्वर को ध्यान करते हुए हर दिन का परफेक्ट यूज करके जिंदगी को जीना स्टार्ट करोगे, बिना स्ट्रेस, बिना एंजाइटी, बिना फ्रस्ट्रेशन। कितना भी स्ट्रेस, कितना भी विषम परिस्थिति हो, अपने दिमाग को शांत करके, अपने सांसों को कंट्रोल करके, गहरी सांस भर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करोगे, न कि डर के गिर जाने का प्रयास करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग फिर से कल इसी जोश, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ मिलते हैं। आज के लिए भाई मस्त व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं हम लोग फिर और बातें करते हैं। थैंक यू भाई, गुड नाइट।